مریم صفدر نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی پولیس نے ہوٹل پر چھاپا مار کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ پولیس نے ہوٹل میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کیپٹن صفدر کو گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مزار قائد کے تقدس کی پامالی کا مقدمہ درج ہے اور مقدمے میں مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت 200 افراد نامزد ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مریم صفدر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کراچی پولیس نے ہوٹل پر چھاپا مار کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ثاقب عالم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ثاقب، بتائیے گا اس بارے میں مزید کیا ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کی جانب سے بریگیڈ تھانے کے باہر شدید احتجاج کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ کیپٹن صفدر، مریم صفدر سمیت 200 سے زائد نون لیگی کارکنان نے جو ہے وہ مزار قائد کا تقدس پامال کیا، جس پر 10 گھنٹے کے احتجاج کے بعد مقدمہ درج ہوا اور مقدمہ درج ہونے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے یہ کارروائی سامنے آئی ہے، جس کی تصدیق مریم صفدر نے اپنی ٹویٹ میں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوٹل کے روم کا دروازہ توڑ کر جو ہے وہ کیپٹن صفدر کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے باضابطہ طور پہ اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن فوٹیجز کے اندر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس نے کیپٹن صفدر کو حراست میں لیا ہے۔ اب تک یہ بات بھی سامنے نہیں آ سکی ہے کہ کیپٹن صفدر کو پولیس کی جانب سے کہاں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ اب گرفتاری کو تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، جبکہ مقدمہ جو ہے وہ بریگیڈ تھانے میں درج ہوا ہے۔ تو کیپٹن صفدر کو بریگیڈ تھانے منتقل کرنا چاہیے تھا۔ جس پولیس موبائل کے اندر کیپٹن صفدر بیٹھ کے روانہ ہوئے ہیں، وہ پولیس موبائل بھی جو ہے وہ SHO بریگیڈ کی موبائل ہے، جس میں کیپٹن صفدر کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے، لیکن اب تک نہ ہی پولیس کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کیپٹن صفدر کو کہاں لے کے جایا گیا ہے، نہ ہی نون لیگی کارکنان کی جانب سے جو ہے کسی قسم کا کوئی رد عمل اب تک سامنے آیا ہے۔ جو ذرائع کہتے ہیں ان کے مطابق اب سے کچھ دیر کے بعد جہاں پر بھی جو کیپٹن صفدر موجود ہوں گے، وہاں پہ نون لیگی کارکنان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہے اس وقت اچھا ثاقب، مزار قائد کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں؟ وہاں پر پبلک گیدرنگز اور اس طرح کی صورتحال کے بارے میں کیا قانون کہتا ہے، ذرا یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، مزار قائد کے حوالے سے جو اس کا رول موجود ہے اس میں یہ ہے کہ مزار قائد کے اندر جو ہے کسی قسم کی نعرے بازی، توڑ پھوڑ اور دیگر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ مزار قائد کے اندر نہیں کی جا سکتی، جس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے جو مزار قائد کی جو سیکیورٹی اور جو مزار قائد کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے درخواست جو ہے وہ بریگیڈ تھانے کے اندر جمع کرائی گئی تھی کہ بریگیڈ کے مزار قائد کا جو ہے وہ تقدس پامال کیا گیا ہے، جس حوالے سے قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری درخواست جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی۔ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست جمع کرانے کے بعد احتجاج بھی جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ جی ثاقب، پولیس کی جانب سے کنفرمیشن کیوں نہیں کی جا رہی؟ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں گرفتاری کو اور اب تک تھانے میں پیش نہیں کیا گیا کیپٹن صفدر کو۔ دیکھیں، یہ بات لازمی طور پہ سوالیہ نشان ہے کہ اب تک جو ہے وہ پولیس کی جانب سے باضابطہ جو ہے اس بات کو واضح کیوں نہیں کیا جا رہا کہ کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ لیکن جو فوٹیجز منظر عام پر آئی ہیں، جو تصاویر منظر عام پر آئی ہیں، اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہوٹل کا روم ہے اس کا دروازہ بھی توڑا گیا ہے اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ پولیس موبائل میں بیٹھ کے روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو فوٹیجز کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے کہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب نون لیگی قیادت کی جانب سے بھی جو ہے کوئی بیان اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے بھرپور احتجاج کیا گیا تھا مقدمہ درج کرانے کے حوالے سے اور نامزد ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اب ملزم جو ہے وہ گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور لگتا یہی ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ثاقب، یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزار انتظامیہ کی جانب سے بھی درخواست دی گئی تھی بریگیڈ تھانے میں، جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اتنے زیادہ لوگ یہاں پر جمع ہو رہے تھے اور نظر بھی آ رہا تھا کہ کیونکہ مریم نواز آ رہی ہیں، ایک سیاسی جماعت کی رہنما آ رہی ہیں، ان کے کارکنان آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت انتظامیہ کہاں پر تھی؟
देखें, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे कबल भी मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो अपने कारकुनान के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी के लिए पहुंचे हैं और इंतहाई एहतराम के साथ जो है वो मज़ार कायद के ऊपर हाजिरी दी जाती रही है। और उसके बाद पुरअमन अंदाज के अंदर कारकुनान जो है वो अपने रहनुमाओं के साथ रवाना हो जाते थे। ये पहली मरतबा ऐसा देखने में आया है कि मज़ार कायद के ऊपर नून लीगी रहनुमा जब पहुंचे हैं अपने कारकुनान के साथ, तो अचानक से जो है एक जो है वो शोर गुल क्रिएट किया गया और नारेबाजी की गई। तो ये लाजमी तौर पे ये अचानक होने वाली सूरत हाल थी जिसपे सिक्योरिटी जो मज़ार कायद की होती है वो भी जो है तैयार नहीं थी। और साथ ही साथ जो एक परसेप्शन है कि मजहबी सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर पहुँचते हैं और इंतहाई एहतराम के साथ, और यहाँ पर सिर्फ नून लीग के ही कारकुनान मौजूद थे। देखिए, वहाँ पे नून लीग के कारकुनान मौजूद थे। साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो मुद्दई है उनका नाम वकास है। वकास भी जो है वो मज़ार कायद पे मौजूद थे, जो कि अपने आप को तहरीक इंसाफ का कारकुन बताते हैं। उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जो मुकदमे में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो है रोकने की भी कोशिश की कि इस तरह की जो नारेबाजी है और जो तोड़ फोड़ की सूरत हाल है वो ना की जाए, जिस पर उनका ये मौक़िफ़ है FIR के अंदर कि कैप्टन सफदर की जानिब से उनको धमकियां दी गई, धक्के दिए गए। ये तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जो है वहां पर पहुंचे थे इनके नून लीगी कारकुनान के साथ साथ। जी लेकिन आज वापस रवाना होना था मरियम नवाज ने, लेकिन उससे पहले ये गिरफ्तारी अब सामने आ चुकी है, तो रद्द अमल भी दिया जाएगा। ब्रिगेड थाने के बाहर क्या सूरत हाल है? कारकुनान पहुँच सकते हैं यहाँ भी? देखिए, ब्रिगेड थाने के बाहर एकदम नॉर्मल सूरत हाल है। वहाँ पर कोई इजाफी नफरी जो है वो पुलिस की मौजूद नहीं है। जिस वक्त एहतजाज चल रहा था उस वक्त पुलिस की नफरी भी मौजूद थी, रेंजर्स के जवान भी जो है वहाँ पर तैनात थे। लेकिन इस वक्त जो है वहाँ पर कोई इजाफी नफरी नहीं है, सिर्फ थाने का जो रूटीन स्टाफ होता है वो मौजूद है। जबकि जो इर्द गिर्द के जो रिहायशी जो इलाका है वहाँ पर भी जो है एकदम नॉर्मल सूरत हाल हमें देखने में मिलती है। किसी किस्म की कोई वहाँ पे जो एक सूरत हाल होती है भगदड़ की या कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल होती है वो नजर नहीं आ रही। और साकिब, सिंध हुकूमत का कोई मौक़िफ़ इस सारी सूरत हाल में अब तक सामने आया है? देखें, अब तक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। नून लीग की क़यादत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। पुलिस की जानिब से भी जो है कोई ऐसा बयानिया जो है वो सामने नहीं आया है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस इस बात की तस्दीक करे कि उन्होंने जो है कैप्टन सफदर को हिरासत में लिया हुआ है। साकिब, जो फुटेजेस सामने आई हैं दरवाज़ा तोड़ने से मुतल्लिक भी उसमें शवाहिद वाज़ेह हैं, तो जो होटल की इंतज़ामिया है अगर उनसे बात हुई हो, उनका क्या कहना है? कितनी नफरी यहाँ पर पहुंची थी गिरफ्तारी के वक्त? देखिए, होटल इंतजामिया से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन होटल इंतजामिया ने बिल्कुल किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से जो है इनकार कर दिया है। जो होटल का स्टाफ होटल में मौजूद था उनका कहना था कि हमारे जो आला अफसरान हैं वो इस वक्त होटल में मौजूद नहीं है, हम किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे सकते। जी ठीक है साकिब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेंगे। तब तक आप मज़ीद डिटेल्स इस बारे में जानिए। ये सुबह के वक्त वाक़या पेश आया 7:06 पर मरियम नवाज़ की जानिब से ट्वीट किया गया कि पुलिस जो है वो उनके होटल के कमरे को तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। अब कहाँ पर लेके गई है कैप्टन सफदर को, ये अब तक मालूम नहीं हो सका है। नून लीग की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ इस सिलसिले में सामने नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, जबकि पुलिस की जानिब से भी अब तक कुछ नहीं बताया जा रहा। मज़ार कायद पर हाज़िरी दी गई थी मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से, और उनके हमरा बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे और वहाँ पर नारेबाजी की गई थी, वोट को इज्जत दो के नारे लगवाए गए थे। और इसके साथ साथ कारकुनान जो है उनकी जानिब से शोर व गुल भी देखा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की जानिब से एहतजाज और धरना दिया गया कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मज़ार के तक़द्दुस को पामाल किया है। और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह के वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें कहां पर लेके गए हैं ये अब तक मालूम नहीं हो सका। इसके साथ साथ 200 मज़ीद और लोग हैं और मरियम नवाज़ भी शामिल हैं इस मुकदमे में, जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसका नाम वकास अहमद बताया गया है, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें मज़ार के तक़द्दुस को पामाल करने, जान से मारने की धमकियाँ देने और हंगामा आराई की दफ़ात दर्ज की गई हैं।
जी, आपको बताएं कि मरियम नवाज़ की जानिब से अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि कमरे का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया है। जिसके बाद मुख्तलिफ फुटेजेस सामने आई, जिसमें कैप्टन सफदर की पुलिस मोबाइल में बैठने के मनाजिर भी सामने हैं। और आपको बताएं कि कहा जा रहा था कि ब्रिगेड थाने में उनको मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन 2 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक कैप्टन सफदर को थाने में मुंतकिल नहीं किया गया। और इस मुकदमे में 200 अफराद मुख्तलिफ कारकुनान भी नामजद थे। एक बार फिर से बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब आलम से। साकिब, जो पुलिस है उसका मौक़िफ़ इस पर क्या सामने आया है कि कोई तैयारी थी इससे पहले और पहले गिरफ्तारी से इनकार किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, नारेबाजी की, उसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है? देखें, पुलिस की जानिब से जो है वो इब्तदाई तौर पे दरख्वास्त वसूल की गई थी। जो मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया गया था, उसके हवाले से दरख्वास्त तो मौसूल कर ली थी मुकदमे के लिए, लेकिन मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से 10 घंटे तक एहतजाज किया गया ब्रिगेड थाने के बाहर। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जिसमें हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर और दीगर जो इलाकाई अहदेदार हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो ब्रिगेड थाने पहुंचे और उन्होंने एहतजाज किया, जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद ही ये कार्रवाई सामने आई है, जिसकी तस्दीक जो है वो इब्तदाई तौर पे मरियम सफदर की जानिब से की गई थी ट्वीट के जरिए, जिस पर मुख्तलिफ जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें वाज़ेह नजर आता है कि पुलिस ने जो है वो होटल का ये मुकदमे की दफात को देखते हुए अब किस नौयत की कार्रवाई हो सकती है कैप्टन सफदर के खिलाफ? देखें, जो दफात मुकदमे के अंदर शामिल की गई हैं उसके तहत जो सजाएं बनती हैं उसमें 3 साल तक जो है वो कैद बामुशक्कत की सजा है। साथ ही साथ भारी जुर्माना जो है वो इन पर आयद किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी खास सजा जो है इसमें नहीं है, जबकि ये जो दफात हैं ये तमाम तर दफात जो है वो काबिल ज़मानत हैं। मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि अब से कुछ देर के बाद कैप्टन सफदर को अदालत में पेश किया जाए और इनकी जमानत हो जाए। जी तो साकिब, जो नून लीग के ज़राए हैं वो क्या कहते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा है उनका, क्योंकि मरियम नवाज़ का नाम भी शामिल है मुकदमे में और आपने बताया कि पहले लेडी पुलिस मौजूद नहीं थी, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं की गई उनकी? देखें, नून लीग की जानिब से जो है अब तक किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है, जिस बिना पर ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि नून लीग का क्या प्लान है और नून लीग जो है वो किस तरह से इस पूरे केस को जो है वो टैकल करने जा रही है। अब तक जो है ना ब्रिगेड थाने पे और ना ही जिस होटल पे मरियम सफदर की गिरफ्तारी हुई है वहाँ पे कारकुनान पहुंचे हैं, जबकि ज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जो खवातीन एहलकार हैं वो अब अवारी टावर होटल जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। जी ठीक है, यानी कि और भी कोई गिरफ्तारी हो सकती है। साकिब, आप साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशाम अजहर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। एहतशाम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सिंध है, कराची है, पंजाब या लाहौर नहीं है, जिसके इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि यहाँ पर हुकूमत जो है वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है इसलिए पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तो PTI की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो कि PDM का हिस्सा है। इस गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ अब तक सामने आया? देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है इस तमाम तर मामले पे जो है अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। ना ही हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की गिरफ्तारी जो है अमल में आती है तो फौरी तौर पे जो सिंध हुकूमत के वुज़रा है या पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो ट्विटर पे एक्टिव नज़र दिखाई देते हैं और ट्विटर पे कोई ना कोई ज़रूर पैगाम देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन उनकी जानिब से अब तक इस वाक़े पे किसी भी किस्म का जो है मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून के लिए जो है मेज़बान का किरदार अदा कर रही थी। कराची में जो है PDM का जलसा था और उसकी मेज़बानी जो है पीपल्स पार्टी कर रही थी और मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा थे, चाहे वो मरियम नवाज हो या कैप्टन सफदर हो, वो तमाम जो है पीपल्स पार्टी के मेहमान थे। और लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या देखने में आया कि मज़ार कायद पर जो है जो तूफान बदतमीजी हुई उस पर जो है तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ से जो है ब्रिगेड थाने के अंदर मौजूद थे और पुलिस पर जो है इस बात पर दबाव डाला जा रहा था कि वो इस वाक़े का मुकदमा जो है दर्ज करें और बिलाखिर वो इस चीज़ में कामयाब हुए थे और उन्होंने जो है
वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मरियम सफदर, कैप्टन मरियम नवाज और कैप्टन सफदर समेत जो है 200 के करीब अफराद को जो है नामजद किया गया था कि ये लोग जो है इस वाक़ये में मुलव्विस है और उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आई है। कैप्टन सफदर को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, मरियम नवाज को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक वहाँ पर लेडी पुलिस का जो है थोड़ा सा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से जो है थाने मुंतकली का अमल जो है मुकम्मल नहीं हो सका है। ताहम कैप्टन सफदर को जो है होटल से गिरफ्तार किया गया है। मरियम नवाज की भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज की भी गिरफ्तारी इस मुकदमे में हो सकती है, क्योंकि बाकायदा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो वहाँ पर ब्रिगेड थाने में पहुंचे थे, तो उनकी जानिब से मरियम नवाज पे भी इसी तरह का इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो भी इस वाक़े में मुलव्विस है और इसकी जिम्मेदार है, जैसे कि कैप्टन सफदर इस वाक़े के जिम्मेदार है। तो मरियम नवाज की भी बिल्कुल गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। ताहम इस हवाले से जो है पुलिस की कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। तहरीक इंसाफ के कारकुन की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मज़ार-ए-कायद का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी जानिब से भी एक मुकदमे की दरख्वास्त दी गई थी, उस पर क्या पेशरफ्त है? देखें, कोई भी वाकया होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि किसी भी वाकये का जो है एक ही मुकदमा होगा, एक से ज़ायद मुकदमा नहीं होगा। तो पुलिस के पास ऑप्शन ये था, क्या तो वो मज़ार-ए-कायद की जो इंतज़ामिया उनकी मुद्दत में इस वाकये का मुकदमा दर्ज करें, या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वहाँ पर और कारकुन दरख्वास्त लेकर पहुंचे हुए थे उनकी मुद्दत में जो है उस वाकये का मुकदमा दर्ज करे। मैं जो बज़ाहिर लगता ये है कि मज़ार-ए-कायद की जो इंतज़ामिया थी वो दरख्वास्त देकर वहाँ से रवाना हो गई थी और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, वो थाने में रात गुज़र तक मौजूद रहे और पुलिस पे ये दबाव डालते रहे कि वो वाकये का मुकदमा दर्ज करें। जिसके बाद पुलिस के पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि वो जो है फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लें। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी, तो उनकी मुद्दत में जो है इस वाकये का मुकदमा। अच्छा एहतशाम, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत एक्टिव हुए हुए हैं और उनकी मुद्दत में मुकदमात भी जो है बहुत दर्ज हो रहे हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि PTI रहनुमा या हुकूमत के जो रहनुमा हैं, जो वज़रा हैं, वो बाद में कहते हैं कि हमें तो इल्म ही नहीं है कि मुकदमा कब दर्ज हुआ, किसने दर्ज करवाया। बाद में उस कारकुन को भी अपना मानने से इनकार कर देते हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल देखी जा सकती है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं सिंध के, उनको इल्म है कि मुकदमा दर्ज हो गया है? देखिए, रात से ही जो है वहाँ पर कोई ऐसा रहनुमा नहीं था तहरीक इंसाफ का। कराची की सतह पर जो वहाँ पर पहुँचा हुआ ना, वहाँ पर हलीम आदिल शेख पहुँचे थे, उसके अलावा जो है खुर्रम शेर जमान वहाँ पर पहुँचे थे। इसी तरह की कराची की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके कई रहनुमा जो है ब्रिगेड थाने वहाँ पहुँचे थे और मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को बार बार दरख्वास्त कर रहे थे। वहाँ पर एहतजाज वो थाने के बाहर भी जो है कई घंटों तक मौजूद रहे। तो ये बिल्कुल भी अब नहीं हो सकता कि वो इस बात से मुकर जाए कि उनके इल्म में नहीं था कि वो ये मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, या वो चाहते थे नहीं थे कि मुकदमा दर्ज हो और ये सिर्फ कारकुन की मर्जी पे हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी अब मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा जो है यूटर्न होगा। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि वफाक की तरफ से, वफाक की जो तहरीक इंसाफ की जो वफाक की क़यादत है उनकी जानिब से इनको क्या हिदायत। ठीक है एहतशाम, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। साकिब, आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा।